بتاؤ کہ اس کا دوسرا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ وہ غصے سے اس آدمی کو پیٹتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ فرقان حبیب کے ایک ٹھکانے پر حملہ کر کے وہاں سے کافی سارا غیر قانونی مال نکلوا چکا تھا، جہاں کچھ بندے تو بھاگ گئے اور کچھ اس کے ہاتھ لگ گئے تھے، اور اب ان کی اچھی خاصی خاطر واضح کرتے ہوئے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، جبکہ وہاں کے خاص آدمی کو زامن احمد نے پکڑا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ڈھیٹ منہ کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بتا، ورنہ جب شوق لگیں گے تو سب گل دو گے۔ وہ اس کے منہ پر مکہ مارتا چیخا تو وہ درد سے کرایا، میں نہیں جانتا کہ فرقان حبیب کون ہے، میں اپنا کاروبار کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ گڑگڑایا، تیرے باپ کا کاروبار ہے سالے، بکواس کر رہا ہے۔ اس کے منہ پر بوٹ سے ٹھوکر مار کر اس کی پہلے سے ہی بری حالت کو اور برا کرتا ہے، اور ابھی مزید اس کی دھلائی کرنی تھی کہ فون کی رنگ پر اس طرف متوجہ ہوا۔ وہاں پر میزاب کالنگ جگمگا رہا تھا۔ بولو میزاب، جلدی، وہ مصروف سا بولتا ہے۔ ایس ایچ او کو اس کی اچھی بھلی ٹھکائی کرنے کا اشارہ کر کے اپنی شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے تھوڑا پرے ہوا۔ یہ جلدی بولنے کا نہیں بلکہ جلدی شادی کا وقت ہے۔ کب آ رہے ہیں تمہارے پیرنٹس؟ وہ بھی جلدی سے بولی۔ ان دونوں کی ابھی اس حد تک دوستی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں تم پر آ گئے تھے۔ آپ والے تکلف کی دیوار وہ دونوں گرا چکے تھے۔ آج شام کا ٹائم ہی دیا ہے، تم سے ہوئی تو تھی شام بات۔ وہ شرٹ کے اوپری بٹن کو کھلا چھوڑے ہوئے چہرے سے پسینہ پہنچتا بولا، اور اس آدمی کا مار کھا کر کراہنا بلند ہونے لگا۔ زامن اسے گھورتا شور سے بچنے کو لاک اپ سے باہر نکلتا ہے۔ ہاں ہوئی تھی، لیکن ایک اور بات ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو زامن تھوڑا پریشان ہوا، اور میزاب کے رات والی بتانے پر اس کو اپنا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس بہن کے وہ کوئی گالی دیتا رکا، بہن کے بھائی کی ایسی کی تیسی تم رشتہ بھیجو، مجھے پتا ہے وہ میرے گھر سے نکلنے کا ویٹ کر رہا ہے تاکہ مجھے کڈنیپ کر سکے۔ مجھے اس کی نیت اور اوقات کا کسی حد تک پتہ چل گیا تھا جب اس نے سے ملی تھی۔ خیر میں کچھ دن کے لیے آفس نہیں آ سکتی، تم عنایت کو بتا دینا صورتحال۔ وہ کافی ذہین واقعہ ہوئی تھی، اور زامن اس کے فرقان حبیب کی چال کو سمجھ کر لاہ عمل تیار کرنے پر کافی خوش ہوا تھا، البتہ اس کی گالی مکمل کرنے پر کان کھجاتا شرمندہ ہوا۔ اور زمزم کیسی ہے؟ وہ محبت سے پوچھتا ہے۔ رات کافی ڈر گئی تھی، ابھی تک مجھ سے لپٹی ہوئی ہے، وہ پاس ہوئی ہوئی زمزم کو محبت سے دیکھ کر کہتی ہے۔ سیاہ زلفیں اس کے دلکش چہرے کو ڈھکے ہوئے تھیں، وہ سوتے ہوئے اتنی زیادہ خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی کہ میزاب کو نظر ہٹانا مشکل لگا۔ وہ زیر لب ماشاءاللہ کہتی ہے، میں چھوڑوں گا نہیں اس گھٹیا آدمی کو، تم زمزم کا خیال رکھنا پلیز، وہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور فکر نہیں کرو میں کچھ بندوبست کرتا ہوں تمہارے گھر کے باہر سیکورٹی لگانے کا۔ وہ اسے تسلی دیتا ہے تو میزاب دھیرے سے ٹھیک ہے بولتی ہے، اور زامن فون بند کر کے اس آدمی کو دیکھتا ہے جو اسے جتنے ٹارچر کے بعد بھی اپنی زبان نہیں کھول رہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ اکٹھا کرتا اس کی طرف بڑھا اور اس کو بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ وہ چیختا ہوا سر پکڑ لیتا ہے جس سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ زامن اس پر بس نہیں کرتا بلکہ ایس ایچ او سے بیلٹ پکڑ کے شدید غصے میں اس کے گلے پر رکھ کر اور گھٹنے کا زور اس کی کمر پر لگاتا پورے زور سے اس کا سانس بند کر دیتا ہے، اور وہ تڑپتا ہوا ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ بتا جلدی، بتا کہ فرقان حبیب کا غیر قانونی مال کہاں پہ ملے گا، بتا جلدی، وہ چلایا، اور وہ سانس کی گھٹن سے موت کو سامنے دیکھتا ہوا سر ہلانے لگا تھا۔ زامن ہلکا سا گرفت کمزور کر کے اسے بولنے کا موقع دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سب اگلنے لگا تو زامن غور سے اس کو سنتا ہے۔ فرقان حبیب کے خلاف اتنے ثبوت تو وہ اکٹھے کر چکے تھے کہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر سکیں، مگر دونوں اتنے ثبوت اکٹھے کرنا چاہتے تھے کہ اس کا انکاؤنٹر کیا جا سکے، یا شاید کہانی کا انجام تبھی ہوتا ہے جب دشمن کھل کر سامنے آتا وار کرتا ہے۔ ثنایا جلدی کرو بیٹا، ابھی تک تم نے ڈریس پریس نہیں کیا۔ عرشا اسے سوچوں میں گم دیکھ کر متوجہ کرتی ہیں تو وہ چونک کر جلدی سے استری اٹھاتی ہے۔ سوٹ بس جلنے ہی والا تھا، میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں، تم بالکل دھیان نہیں دے رہی ہو کسی کام میں، اور نہ ہی کالج جا رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر استری میز پر رکھتی ہیں، اسے اپنے پاس بٹھاتی ہیں، البتہ چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے، میں بھائی سے بات کی ہے، میں کالج نہیں جایا کرنا، اب صرف پیپرز ہی دوں گی، وہ دھیرے سے بولی تو وہ حیران ہوئی کہ وہ بی ایس سی کے دوسرے سیمسٹر میں تھی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کالج کیوں نہیں جانا، اور کس بھائی سے کی ہے؟ میں اس کو بتاؤں کہ کیسے تمہاری ضدیں پوری کرنی ہیں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ اپنی بیٹی کی تربیت کے معاملے میں وہ بہت حد تک سخت تھیں، اور ثنایا ان کے غصے سے ہمیشہ ڈرتی تھی۔ وہ مما عنایت بھائی سے بات کی تھی، آپ اس بارے میں ان سے بات کر لیں، میں بس کالج نہیں جانا، وہ منہ نیچے کر کے حتمی لہجے میں بولی تو وہ غصے سے اسے گھورتی ہیں۔ بکواس نہیں کرو سمجھی، تمہاری پڑھائی کے معاملے میں کوئی لاڈ پیار نہیں ہے، آج شام رشتہ لے کر جا رہے ہیں اور کل تم کالج جاؤ گی، دیکھتی ہوں میں تمہارے بھائیوں کو بھی جنہوں نے تمہیں سر پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ منہ پھیلا کر کہتی ہیں، اٹھ کھڑی ہوئیں، اور ثنایا کا موڈ آف ہوا۔ لیکن مما مجھ سے بار پت کھا لینا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھے بحث بالکل پسند نہیں، وہ کہتی ہیں وہاں سے کہ چلی گئیں، اور ثنایا رونے والا منہ بنائے پیر پٹکتی اور استری کرنے لگی۔ اس کی والدہ صاحبہ نے اس کے بھائی کا رشتہ پکا کرنے جانے کی ساری خوشی غارت کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے دونوں بھائی عرشا کے غصے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ وجہ بتا سکتے تھے۔ البتہ عنایت نے اس لڑکے سے بدلہ لے لیا تھا، اور کیسے لیا تھا یہ اپنی بہن کو ہرگز نہیں بتایا تھا، البتہ اس کو مکمل طور پر مطمئن اور حوصلہ دینے کی کوشش ضرور کی تھی، اور ثنایا کسی
حد تک उस वाक़ये को भूल भी गई थी और अपने भाई के दिलासे कुछ काम भी आए थे, लेकिन अब उसका ज़हन किसी और जानब रवां था। वो एक खुलती हुई गली थी जिसका रुख हवाओं ने बदलना था, और जो हवाएं उसके भाई ने ऑफिस में लगाई थी उनकी नमी अभी तक उसके इर्द-गिर्द मंडला रही थी। एक कच्चे और मासूम ज़हन के लिए वैसा मज़ाक ऐसे ही था जैसे कच्ची ज़मीन पे बरसती हुई बारिश। वो इस मंज़र और रिश्ते को याद करती इसी टेंशन में थी कि अगर जो उसके दिल ने मज़ीद ज़िद शुरू कर दी और वो मज़ीद असीर ज़हर बन गई तो वो अपने भाइयों और मम्मा-पापा को कैसे हैंडल करेगी। और सबसे बढ़कर जिसके बारे में सोचें आ रही थीं वो तो उससे बिल्कुल अनजान था। वो खुद को हर बार नए सिरे से समझा रही थी। ये रोग ही ऐसा था जो अच्छों को सोचों में डाल देता है। सनाया तो फिर बहुत मासूम थी। उसने ज़रा सी बात को दिल पे लगा लिया था। सर वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं आ रही, और ऊपर से उस एसपी ने उसके घर के बाहर सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है। वो इमरान की बात पर चाय पीता कड़वाहट महसूस करता है। उल्लू के पट्टों से यही उम्मीद थी। खैर डोंट वरी, मिजाब घर में टिकने वाली तो है नहीं, वेट करो आ जाएगी बाहर। वो कहता सिर भरता है। लेकिन सर मुझे खबर मिली है कि एसपी की फैमिली आज उनके घर गई है और अच्छे खासे एहतमाम के साथ गई है। वो उसकी इतला पर कुछ देर को मुंह में स्केट कर किसी गैर मुरई नुक्ते को घूरता है। तो एसपी बहुत डर चुका है अपने महबूबा को लेकर, इसलिए रिश्ते के लिए अपनी फैमिली को भी भेज दिया। वो जल्द अपनी महबूबा से शादी करके इसे महफूज करना चाहता है, लेकिन फरकान हबीब को अब उसकी महबूबा से कुछ लेना देना नहीं। वो उन लोगों को वहाँ से डसेगा जहाँ से उनको कोई उम्मीद भी नहीं होगी। फिलहाल तो मुझे जल्द अज जल्द महजाब चाहिए। वो बेरहमी से कहता है तो इमरान सर हिलाता है। वाह कमाल की चाय बनाई गई है, वो तारीफ करता है, और इमरान को उसके इतने आराम से बैठे रहने पर तप चढ़ी। सर क्या वाकई में उस सेक्रेटरी से शादी करना चाहते हैं? वो यूं ही पूछता है। बिल्कुल मैं उससे शादी करूंगा, और जहाँ तक बात है उसकी नफरत और चालाकियों की तो डोंट वरी, इस रिमोट के सेल में चेंज कर डालूंगा। वो फिर लापरवाही से बोला। और हैडक का क्या करेंगे? वो दिलचस्पी से टोल लेता है। हैडक को भी देख लूंगा, जब निकाह हो गया तो उसके वावेला करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी लापरवाही अरूज पर थी। इमरान धीरे से सर हिलाकर कंधे हिचकाता अगला अमल तरतीब देने लगा। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। इर्सा मिज़ाब को अपने साथ लगाती वालेहाना अंदाज से कहती है तो उसे मजबूरन कोशिश करके शर्माना पड़ा, क्योंकि शर्म अज़को तो उसके पास आने से रही। कैसी हैं भाभी? सनाया भी खुश दिली से कहती उसके गले लगी, और मिज़ाब लफ्ज़ भाभी सुनकर दिल ही दिल में तभी, क्योंकि हनायत का हवाला उसके लिए काफ़ी ज़बत आजमा था। अलबत्ता चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट सजाती धीरे से सर हिलाती है। सनाया को और इर्सा को रिश्ता लेकर आना पड़ा था कि अहमद साहब को एन टाइम पर कहीं जाना पड़ गया, और मिज़ाब ने शुक्र किया क्योंकि उसने जहादा को अपने ससुर के हॉस्पिटल एडमिट होने का ही बताया था, और आखिरी सांसें बताकर मज़ीद कहानी को मजबूत कर डाला। अस्सलाम वालेकुम। मिज़ाब जमजम चाय और बिस्किट के साथ दूसरे लवाजमात लाती शर्माई सी बोली। तो सनाया और इर्सा गौर से उसे देखती हैं। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन से वाली हनायत की पसंद है और कौन से वाली जामुन की पसंद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बेटा? इर्सा ने प्यार से पूछा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आप सुनाएं, बोली। इर्सा को उसके इतने अच्छे अंदाज से अंदाज़ा हो गया कि यही जमजम है और उनके जामन अहमद की पसंद है, और सच यही था कि उन्हें जमजम मिज़ाब से ज़्यादा पसंद आई थी। हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के लिए जो भी लड़की आए वो सलीकामंद, खूबसूरत, खुश अखलाक और सुलझी हुई हो, और जमजम उन्हें ऐसी ही लगी थी। लेकिन मिज़ाब में उन्हें सफाई खूबसूरती की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई थी। उसका लिबास, उसका नखरा और उसके चेहरे की बेजारी एक सास की हैसियत से उनके लिए बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो हनायत की पसंद थी, इसी वजह से उसे मोहब्बत से ही पेश आ रही थी, और वो दोनों ही थोड़ी हैरान हो रही थी कि हनायत ने उसे पसंद कैसे कर लिया। वो जो लड़कियों से एलर्जिक था, फिर लड़का नुमान लड़की के जाल में कैसे फंसा। वो सिर्फ ऑफिस में ही लड़कियों वाले होलिये में जाती थी कि हनायत का यही ऑर्डर था। अलबत्ता घर और बाहर वो अभी भी वैसे ही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बैठो ना आप। वो उसे भी पास बैठने का इशारा करती हैं। सनाया मिज़ाब के साथ वाली दाएं तरफ सिंगल सोफे पर बैठी हुई थी, और इस डबल सोफे पर अपनी दोनों बहुओं के साथ बरजमान थी, जबकि ज़्यादा जो उनके सामने कुर्सी पर बैठे हुए थी। इर्सा का जमजम के लिए ऐसा वालेहाना अंदाज कर देखकर थोड़ी बेचैनी महसूस करती हैं। ये मेरी बड़ी बेटी है, और इसका रिश्ता माशाल्लाह से मेरे शौहर की पहली बीवी के बेटे से तय हुआ है। वो बताकर उन्हें किसी भी खुशफहमी से आज़ाद करवाने की कोशिश करती हैं, और वो दोनों नाक से मक्खी की तरह से ये बात उड़ाती हैं कि जामन इन्हें सारी बात बता चुका था। दूसरी तरफ जमजम का दिल दुख से भर गया कि उसकी सगी माँ को उनसे ज़्यादा अपने सौतेले बेटे से मोहब्बत थी, और मेहजाब अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। साथ ही ज़्यादा को घूरा जो जवाबन उसे घूर कर तमीज़ के दायरे यानी खामोश रहने का इशारा करती हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है, बेटियां जितनी जल्दी हो अपने घर की हो जानी चाहिए। वो जमजम के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत से कहती हैं, और दिल ही दिल में जामन की पसंद को सराहा। ज़्यादा उनके ऐसे रवैये से थोड़ा परेशान होती हैं, इसीलिए जमजम को वहाँ से जाने का इशारा किया। वो जानती थी कि मिज़ाब का वो कोई पसंद कर ले, ये हो ही नहीं सकता। उन्हें ये भी अंदाज़ा हो गया था कि उन दोनों माँ बेटी को मिज़ाब बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका झुकाव जमजम
की तरफ था और जमजम को वो सिर्फ सगीर के साथ बयाना चाहती थी। रही मिजाब की तो उसको जल्द अज जल्द यहाँ से रुखसत करने का इरादा बांधा। जमजम तुम जाओ आराम करो बेटा, दरअसल ये सीढ़ियों से गिरी थी 2 दिन पहले, तो इसलिए जख्म ताज़ा हैं। वो पहले जमजम को हदायत करती फिर उनकी तरफ रुख करके कहती हैं, और ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, आपको आराम करना चाहिए। फिर तो अरसा ने बात को समझते हुए अपने लहजे को थोड़ा कंट्रोल करके नॉर्मल अंदाज में कहा। वो ये भी जानती थी कि जमजम से जामन जल्दी इसीलिए शादी करना चाहता था कि 2 दिन पहले उस पर हमला हुआ था। जमजम धीरे से उन्हें और फिर सनाया को मुस्कुरा कर देखती, दर्द बर्दाश्त करती, उठकर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चली गई। मिजाब तुम भी जाओ। ज़ाहदा ने उसे शर्म बेशर्म को भी खुद ही उठाया कि वो रुकती तो इरसा रिश्ते की कोई बात करती जिसका ज़ाहदा को बेचैनी से इंतजार था। अच्छा, वो सर हिलाती उठकर अंदर चली गई। इरसा और सनाया की बेरुखी को देखती रह गई। आप कुछ लें ना, वो उठकर ट्रे उनके सामने करती हैं तो वो दोनों मुस्कुराकर शुक्रिया कहती चाय का कप थाम लेती हैं। दरअसल हम बहुत अहम बात करने के लिए यहाँ आई हैं। वो बात का आगाज़ करती हैं और वो खुश हुई। अलबत्ता सनाया तब से अब तक अचानक खामोशी के साथ इधर उधर देखती, खुद को बोर होने से बचा रही थी। सोचा था भाई की होने वाली बीवी को जी भर कर छेड़ेगी, मगर जहाँ भाभी मैडम का नखरा उसे अपनी हद में ही रहने की तलकीन करता है और जो अच्छी लगी थी उससे खुलकर बात करने पर बनती थी। आपको मिजाब ने थोड़ा बहुत बता दिया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौट आएंगी। वो मुझे दिल से ही पूछती हैं कि बहरहाल मिजाब को बहू बनाना बहुत मुश्किल लगा था। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। वो चाय का सप लेती हैं और ज़ाहदा के चेहरे पर फैलने वाली खुशी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे फांसी की सज़ा मनसूख कर दी गई हो। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप अपने इतने काबिल और सुलझे हुए बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांग रही हैं। बहरहाल मैं अपने शौहर से थोड़ा इस बारे में पूछना मुनासिब समझूंगी। वो ऊपरी दिल से कहती हैं तो वो भी फ़ौरन सर हिलाती हैं। जी जी बिल्कुल, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें शादी की थोड़ी जल्दी है। जमजम और मिजाब जो कि दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी थी इस बार पर मज़ीद हशाश बशाश हुई। जी जी मैं समझती हूँ, मुझे मिजाब ने बताया था आपके शौहर के बारे में, बहुत अफसोस हुआ मुझे। वो अफसरदगी से बोली और इरसा और सनाया चाय का घूंट भरती हैरानी से एक दूसरे को देखती हैं, जबकि मिजाब और जमजम का सांस खुश्क हुआ कि अब पोल कहाँ खुल जाए। माफ़ कीजिएगा, मेरे शौहर के बारे में क्या? वो कप रखती संजीदगी से पूछती हैं तो ज़ाहदा आपकी बारे हैरान हुई और कुछ कहने ही वाली थी कि मिजाब जल्दी से बाहर नाजल हुई। कुछ खास नहीं आंटी, बस यूँ ही। आप सुनाए आजकल क्या कर रही हैं, और सुनाए तुम क्या करती हो? वो उन्हें दूसरी तरफ उलझाने की कोशिश करती बोंगे से सवाल करने लगी, जिस पे वो हैरान हुई। दोनों हैरान हुई कि ये लड़की इतनी जल्दी बदलाव कैसे ले आई। ताहम दोनों फिक्की सी मुस्कुराहट के साथ मुश्किल अपना ध्यान उसके सवालों की तरफ लगाती हैं और उनके जवाब में ज़ाब बेदिली से सुनती शुक्र करती है कि उसका पोल नहीं खुला, वरना रिश्ता तो क्या करती, उस पर केस करना पक्का था और उनका बेटा सीधा उसका इनकाउंटर करता। दूसरी तरफ ज़ाहदा शदीद दुआ गो थी कि उसकी बेटी को शर्म और अकल आ जाए, वरना उसका घर बसना बहुत मुश्किल था।